Before I begin, let me say this very clearly. This video is dedicated to my teacher, to my mentor, Paramita ma'am. She played a crucial role in rebuilding my career from 2022, at a time when I was emotionally broken, professionally lost, and unsure if I could even restart. This video is not praise for the sake of praise. It's about standards. Because what I look for in a yoga teacher today comes directly from what I experienced with her. Over the years, people often ask me that how I choose my yoga teacher or how I choose my mentor and what I look for in teachers before I enroll for their classes and all. And my answer is always simple, that I always choose people over performance. I always choose people, I always choose teachers who can hold me not on the mat only, but outside the mat also. When the life gets tough, when I am completely unstable, completely broken, because it affects my practice as well. And today, let me just share some of the qualities that I look for in a yoga teacher and what actually drew me or aligned me to the energies of Paramita ma'am. So, चलिए आइए शुरू करते हैं. Sincerity versus performance. The first thing I always look for in a teacher is sincerity and not performance. Paramita ma'am is very sincere in her professional life. I have never seen her taking off unnecessarily. बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा जो है कुछ हो गया या फिर हर दूसरे दिन जो है क्लासेस को ऑफ देते रहते हैं. I have never seen ma'am actually taking off unnecessarily or taking her students very lightly or for granted. वो कभी नहीं देखा मैंने. And that sincerity, अगर मैं बोलूँ, I enrolled with her in 2022 and it's 2026 January. We are shooting this video. तब से लेके अब तक I have never seen, even for a day, that she has taken anybody in her class or whenever we reach her out for any kind of help. She never takes anybody for granted. So that's a very good quality that I feel every yoga teacher should learn, should imbibe in themselves. And one more thing is with sincerity comes honesty also. Sometimes the cues fumble in the class. बहुत टाइम होता है कि हम बोलते बोलते फंबल कर लेते हैं और ये हर टीचर जो है, मैं जब बोल रही हूँ, रिलेट कर पाएगा. मैम ऑलवेज एक्चुअली सिंसियरली एक्सेप्ट्स इट कि ओह सॉरी आई वॉज रॉन्ग, let me just correct it, this way you have to go. And this taught me something very important, that a sincere teacher does not need to perform perfection. As a student, this gives you permission to be real, to learn. And this is something I have learned from her, that sincerity builds trust more than flawless classes or flawless performance or anything you call it. So ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिसिंग होता है आज के डेट पे, अगर जब मैं बाकी टीचर्स के क्लासेस अटेंड करती हूँ है ना. सेकेंड, टीचेबिलिटी. Always a student first. The second quality I look for in a teacher is that teacher teachable. Teachable से मेरा मतलब है कि अगर हम उनको कुछ बोले, वो कैसे उस चीज़ को जो है एक्सेप्ट करते भी है या नहीं. That's a very important question. So Paramita ma'am also believes in the principle that always be a student first. जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि अ गुड टीचर शुड ऑलवेज बी अ गुड स्टूडेंट फर्स्ट
तभी जाके वो अच्छा टीचर बन सकता है. A lot of time happened when I said ma'am or texted ma'am sometimes कि ma'am I think this could have been done this way also, and she accepted it. As a teacher, like I am also a teacher and she is also my teacher. यहाँ पे clashes आना बहुत ज़्यादा normal था. Because I have attended around अभी तो hundreds of yoga classes from different yoga teachers I have attended, and उसमें I have seen कि मेरे साथ नहीं हुआ लेकिन बाकियों के साथ मैंने देखा कि जब कोई स्टूडेंट जो खुद एक योगा टीचर है, वो जब जो लीडर है क्लास का एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनको कुछ बोलता है या अपना पॉइंट ऑफ व्यू जस्ट डालता है, दैट टीचर डजंट और नेवर टेक्स इट एक्चुअली नाइसली. ईगो क्लैशेस यहाँ पे होते हैं, एंड दैट्स व्हेन यू नो दैट टीचर इज़ टीचेबल और नॉट. और ये क्वालिटी पारुमिता मैम में भर भर के है, एंड आई थिंक दैट्स वाई शी इज़ यूनिक. एंड इसीलिए मैं 2022 से 2025 तक आई एम स्टिल विथ हर. एंड एज योगा टीचर्स ourselves also we need to learn this, that whenever somebody obviously किसी का भी हमें जो है सुनना नहीं है, ऐसा नहीं है. whenever somebody is telling us something which is right, which is correct, we need to learn that thing without like keeping our ego on the back seat, keeping our pride on the back seat. हम अगर उसको सीख लेते हैं, हम अगर उसको जो है accept कर लेते हैं, that's when we become a student, and this quality actually takes us long way. Third is emotional stability. So the third quality is emotional stability. I have never seen ma'am lose her calm either on the class or outside the class, and that's a very like amazing quality that we all have to, we all need to actually imbibe in us as well. So let me just tell you my story, how I discovered her and all. So it was 2022 जब Instagram पे I was scrolling and suddenly one of her posts actually came on my feed. तो उस पोस्ट पे लिखा हुआ था समथिंग रिलेटेड टू योगा टीचर ओनली, जो मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा था. एंड देन आई वेंट ऑन हर प्रोफाइल एंड चेक्ड ईच एंड एवरी पोस्ट और रील दैट शी शेयर्ड देयर, एंड हर एक कैप्शन वाज सो ह्यूमनली रिटन. व्हेन आई से ह्यूमनली रिटन, आई मीन दैट आज के डेट पे या फिर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग कैप्शंस लिखते हैं, बहुत ही रेडीमेड काइंड ऑफ लगता है कहीं से छाप दिया है, कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया है. उनका ऐसा नहीं था. मतलब कैप्शन पढ़ के समझ आ जाता है कि उन्होंने खुद ने अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे बोला है, एंड इट्स नॉट कॉपीड फ्रॉम समवेयर एंड ऑल, इट्स हर ओन एक्सपीरियंस, एंड आई एक्चुअली रिलेटेड टू ऑल ऑफ देम अ लॉट. So then I saw her story जहाँ पे उनका योगा क्लास का पोस्टर लगा हुआ था that the registrations are going on and all. So at that time I was going through my divorce case and completely out of track from my life, from my professional world and all, and I needed someone to guide me because first thing कि मैंने बहुत weight gain कर लिया था. एंड आई लॉस्ट लॉट ऑफ माई मेमोरी कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं. आई लॉस्ट माई कॉन्फिडेंस एंड एवरीथिंग. मतलब एकदम टेरिबल स्टेज में आई वॉज देयर. सो आई टेक्सटेड हर दैट हेलो मैम, I want to enroll for your classes, but I am going through a very terrible state, and I want you to know that before I join your classes, because I might not be able to sit in even सुखासन also, and वो सच में मैं सुखासन में भी नहीं बैठ पाती थी पहले मैट पे. So she replied me with the details and all of the class, and then told me that send me an audio, I will listen. So it was around night 9:30 10 ऐसे था. I sent an audio of around 11 minutes, और मेरे को लगता था कि यार बहुत इतना 11 minutes का वीडियो को मतलब ऑडियो कौन सुनेगा, वॉइस नोट कौन सुनेगा. She listened to it with utmost sincerity and then replied to me. वो रिप्लाई सुन के ही मेरे को लग गया था कि she is the one, she is the teacher that I needed. And यही से my journey actually, it was a rebirth, I will say.
So from that day, she is not just my teacher, she held me like a baby. अगर मैं बोलूँ तो whenever I text her, whenever, be it in the morning, afternoon, even कभी भी regarding anything, मैं बहुत टाइम ऐसे हुआ था कि प्रोफेशनल क्लैरिटी मेरे में नहीं आ रही थी बिकॉज ऑफ द केओस दैट वे गोइंग ऑन इन द टीटीसी एंड एवरीथिंग. तो सबसे सेफेस्ट प्लेस मेरे को हमेशा से वो लगी. तो आई यूज टू टेक्स्ट हर कि ये प्रॉब्लम चल रहा है, व्हाट शुड आई डू, आई रियली डोंट नो व्हाट शुड आई डू, प्लीज़ गाइड मी. शी गाइडेड मी. एंड इवन इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो बहुत टाइम इमोशनल अनस्टेबल थी मैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरा थोड़ा सा है कि जब मैं थोड़ा सा अनस्टेबल होती हूँ मेरा प्रैक्टिस छूट जाता है. आई जस्ट नीड कि मतलब मेरे को समझ नहीं आता व्हाट शुड आई डू. तो 2-3 दिन प्रैक्टिस छूटने के बाद शी यूज टू टेक्स्ट मी कि वेयर आर यू, वाई यू आर नॉट कमिंग टू द क्लास. देन आई यूज टू टेल हर कि मतलब ये चल रहा है लाइफ में एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट. एंड शी गाइडेड मी थ्रू आउट. सो व्हेन आई से शी हेल्ड मी लाइक अ बेबी, आई मीन इट. And I think as a yoga teacher, this should be one of the like foremost priority that we should actually imbibe in us, or we should actually take it seriously. that हमें kindness के साथ, एक boundary के साथ kindness रखना है. and we have to be humans. हमें सिर्फ professional जो है रह के नहीं चलना चाहिए because ultimately yoga teaching इज़ अ ह्यूमनली जॉब. कोई मशीन जॉब तो नहीं है कि आप जो है ऐसे ही जस्ट क्लाइंट से पैसे लिए, क्लास किया, ख़त्म. नो, you need to understand your students, the student needs to understand you as a teacher, as a human, and that's when the connection builds. and तभी जाके कोई student आपके साथ जो है ये लंबा जो है रह जाता है. तो कभी कभी होता है, जैसे I am now on a break because I met with an accident last week. So I'm asked not to do any sort of movement right now. So ये सब crucial time मतलब times है जब मतलब just practice छूटता है because of some genuine reasons. तो 1 महीने का break लेने के बाद I will again restart with her. I will again resume my practice. And आप अगर मेरे से पूछे, a lot of my friends actually used to push me कि अरे come to our teacher's yoga class, he is very good, he is better and all. I don't know, ये good better का वो मेरे डिक्शनरी में नहीं है. I always see teacher or mentor as somebody who should be safe for me. So बाकी लोगों के क्लासेस never feels or never felt safe for me, for my body, for my mind, for my मन. But with her it's completely different. and I think जब मैं अगर अपने योगा क्लास की बात करूँ, I also have students who are connected with me since 2018. and 2018 से लेके 2026 तक they are still with me only. एंड आई थिंक उनको भी यही चीज़ फील होता होगा, द सेफ प्लेस. एंड ये क्रिएट करना सबकी बस की बात नहीं है, बट जिसने ये क्रिएट कर लिया विथ देयर वार्म नेचर, उनके लिए योगा टीचिंग करियर में ग्रो करना वो कोई जो है मतलब आई डोंट थिंक इट्स अ टफ थिंग. 4th इज़ कंसिस्टेंसी. शी इज़ वेरी कंसिस्टेंट एज अ टीचर ऑल्सो, एज अ स्टूडेंट ऑल्सो. I have never seen her taking off from her own practice also. मेरे को लगता है जब सेल्फ प्रैक्टिस नहीं होता टीचर का, तब वो टीचर जो है क्लास में आके आपको जो है अच्छे से गाइड ही नहीं कर पाता. सो दिस इज़ अ थिंग जो मैंने उनसे बहुत ज़्यादा सीखा है. और जैसे अभी आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम द मैट, बट आई मेक श्योर कि आई प्रैक्टिस और आई एक्चुअली डू द प्राणायामा एटलीस्ट लाइक 15 to 20 minutes a day. कुछ ना कुछ मैं करूँ. बहुत टाइम ऐसा होता है कि टाइम आपको अलाउ नहीं करता. बहुत टाइम होता है कि यू हैव अ लॉट ऑफ क्लासेस कि उसके बाद आप थक जाते हैं, बट उसके बाद भी यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ लाइक अ स्लॉट फॉर योर सेल्फ, कीप अ स्लॉट फॉर योर सेल्फ. तो ये मैंने उनसे सीखा
कि चाहे कितने भी क्लासेस मैं लूँ, सेल्फ प्रैक्टिस का एक क्लास जो है वो मेरे जो है स्केड्यूल में रहेगा ही रहेगा, चाहे वो सुबह रहे चाहे शाम को रहे, या फिर अलॉट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि अगर सुबह शाम में बिजी हूँ या क्लासेस क्लैश कर रहे हैं तो आई टेक रिकॉर्डिंग्स फ्रॉम हर एंड देन आई प्रैक्टिस इट, जैसे दोपहर के टाइम पे आई प्रैक्टिस इट ऑन माई ओन। एंड ये मैंने उनसे ही सीखा है, बिकॉज आई फील a teacher who is not consistent in her or his own practice cannot be a great anchor for you. So आप जब एक टीचर चूज़ करें, जस्ट लुक कि उस टीचर का खुद का प्रैक्टिस कैसा है, तब जाके वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा। सो वाई ऑल ऑफ दिस मैटर्स फॉर यू, आपको पता है मैं वीडियो अगर बनाती हूँ तो एवरी वीडियो आई बिलीव कि वो हर वीडियो वैल्यूएबल हो। तो मेरे को यही जस्ट मैसेज आप तक पहुंचाना था कि आप टीचर्स हो सकते हैं, आप योगा टीचर्स बन गए, लेकिन आपको भी किसी टीचर की, किसी मेंटर की ज़रूरत है। तो आप जब अपने लिए टीचर ढूंढे, अपने लिए मेंटर ढूंढे, किसी को टीचर, मेंटर या गुरु का टैग लगाने से पहले आप ये क्वालिटीज़ उनमें ज़रूर देखें। पारुमिता मैम से पहले आई हैव अटेंडेड हंड्रेड्स ऑफ योगा क्लासेस फ्रॉम डिफरेंट योगा टीचर्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, बट मैंने बोला ना, नथिंग मैचेस टू वॉट हर क्लासेस आर। और मेरे को लगता है इट्स बिकॉज ऑफ द सेफ प्लेस। बहुत सारे क्लासेस में मैंने देखा है द टीचर एक्सपेक्ट्स अ लॉट, एंड एक्सपेक्ट्स अ लॉट से मेरा मतलब है कि जब उनको पता चलता है कि यू आर ऑल्सो योगा टीचर, दे फील कि ये तो हर एडवांस्ड आसना कर सकता है, लाइक फॉर देम यू आर ए परफॉर्मर, ऐसा हो जाता है। बट विथ हर इट्स कम्प्लीटली नॉट, मतलब ये केस तो है ही नहीं। आई नेवर फील कि आई एम जज्ड, आई नेवर फील कि मेरे को ना थोड़ा सा अवेयर होके रहना है, हाउ माई प्रैक्टिस इज लुकिंग, हाउ आई एम लुकिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो कोई ऐसा पर्सन विथ whom you are completely real, with whom you are completely yourself, is your safe person. So her classes are the safest place for me, I believe. And one more thing I just want to tell you all that one of my students from TTCs actually attended her classes, one of the classes on 21st I think June last year. तो वहाँ क्लास अटेंड करने के बाद उस मेरे स्टूडेंट ने आके मेरे को बोला कि मैम बोथ ऑफ यू टेक द सेम क्लास, मतलब मेरे को लगा ही नहीं कि आप अलग हो, जस्ट वो वॉइस आप दोनों का अलग अलग है, बाकी क्यूज द ऑल एवरी सिंगल थिंग इज सेम। तो अगर व्हेन आई से दैट शी हेल्प्ड मी रीबिल्ड माई करियर, आई रियली मीन इट, बिकॉज 2022 में मैं जहाँ थी वहाँ से कोर्स करके वापस से जो है चीज़ों को सीखना, रीलर्न करना, अनलर्न करना बहुत जो है मुश्किल होता है। बट अगर मैं अपनी बात करूँ, इट वॉज अ स्मूथ एंड द मोस्ट ईजीएस्ट जर्नी सो फार। वो इसी वजह से हुआ बिकॉज ऑफ द सेफ प्लेस शी क्रिएट्स इन हर क्लास, एंड इसी वजह से जो उनके क्यूज़ है वो थोड़े से जो है अपने आप मतलब सबकॉन्शियस माइंड में आप भी वैसे ही जो है सोचने लगते हो, एंड देन वो आपके टीचर की तरह आप भी क्लास लेने लगते हो। तो इसीलिए मैं जब अपने TTC में क्लासेस लेती हूँ, आई टेल एवरीबॉडी कि आप टीचर चूज़ करने के पहले अच्छे से देखना कि क्या मेरे को इस टीचर के जैसे क्लासेस लेने हैं। मतलब ऑब्वियसली हर टीचर का अपना स्टाइल होगा, बट ऑलमोस्ट क्यूज़ तो सेम ही रहते हैं। तो ऑन पॉइंट क्यूज़ देना वो कोई मैम से सीखे। आई हैव लर्नड इट फ्रॉम हर, एंड आई डोंट नो इफ़ आई हैव द पिक्चर और नॉट, अगर है तो मैं बोलूँगी यहाँ पे लगा देने के लिए। दिस इज़ द फर्स्ट क्लास दैट आई डिड विथ हर, जहाँ पे मेरा आई वॉज मतलब 12 kg हैवियर थी मैं, एंड मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कोई आर्म स्ट्रेंथनिंग जो है आसना या आर्म बैलेंसिंग आसना मैं कर सकूँगी। बट दिस वाज द फर्स्ट क्लास ऑफ कोर एंड आर्म स्ट्रेंथनिंग, एंड आई डिड द क्रो पोज। तो तब का क्रो पोज देखिए, देख के लग रहा है कि ये कोई बिगिनर है, एंड मैं सच में वहीं पे थी। एंड वहाँ से लेके आज मैं जहाँ तक हूँ, मतलब अगर हम 100% में देखें तो 99% क्रेडिट गोज़
to her. So this video is not just about my teacher, it's about how you choose yours. Before trusting a yoga teacher, ask yourself, do they value sincerity over performance? Are they teachable? Are they emotionally stable? Are they consistent? If these qualities are present, learning becomes safe. And these are also the qualities that we hold in our classes, in our TTC classes, in our yoga school. तो जैसे मैंने बोला कि जैसे वो क्लासेस लेती है, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर, एंड वो चीज़ आई थिंक मेरे TTC क्लासेस में दिखते हैं, एंड दैट्स वाई व्हेन पीपल लीव, वो फीडबैक में ये एक लाइन मैंने देखा है, कॉमन है हर किसी का, कि you make the safe place, the class a safe place to be ourselves and all. ये एक फीडबैक है जहाँ पे उन्होंने लिखा है बहुत ही, एंड बार बार बोलते हैं कि मैम हमें, मतलब आप होते हो तो हमें लगता है कोई है, एंड बहुत छोटी सी बात लगती है ये, बट एज अ टीचर लाइक इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी, एंड मेरे को लगता है ये क्वालिटीज़ मैंने इन्हीं से सीखी है, एंड आई रियली वॉन्ट कि आप भी इन क्वालिटीज़ को अपनाएं बिफोर चूजिंग अ टीचर, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, लोग मेरे से पूछते हैं मैम हाउ कैन आई बी अ बेटर योगा टीचर, सो दिस वीडियो इज़ द आंसर फॉर यू। नाउ इफ़ यू वांट टू register for my TTC from our yoga school, we conduct 200 and 500 hours TTC, and we are affiliated under the Indian Yoga Association. अगर आपने ऑलरेडी TTC कर लिया है एंड यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट फर्दर इन एनी कोर्सेज, तो आप हमारे वीकेंड वर्कशॉप्स में भी आ सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं। टू रजिस्टर फॉर एनी ऑफ दिस यू कैन जस्ट कॉल माई टीम ऑन दिस वेरी नंबर एंड रजिस्टर योरसेल्फ. I hope this video helped. Thank you.